Right now, we're facing a man-made disaster of global scale. Our greatest threat in thousands of years, climate change. If we don't take action, the collapse of our civilizations and the extinction of much of the natural world is on the horizon. हेलो एवरीवन, वक्त जैसे गुज़र रहा है, आप बदल रहे हैं, हम बदल रहे हैं और ये पूरी दुनिया बदल रही है। साथियों, अगर हम सभी हमारे जीवनी की कुछ पुराने पन्ने को देखें और अभी से कंपैरिजन करें तो हमें काफ़ी सारे चीज़ डिफरेंस मिलेंगे। एट फर्स्ट अगर हम सभी बात करें ह्यूमन सोसाइटी की, ह्यूमन हेल्थ, फिजियोलॉजी एंड क्रैनियल कैपेसिटी की, एंड अपार्ट फ्रॉम दिस अगर हम सभी बात करें हमारे आसपास के आज के इन्वायरमेंट की और हमारे आसपास के आज के इन्वायरमेंट को हमारे पुराने इन्वायरमेंट्स से कंपैरिजन करें एंड स्टडी करें, then we found a huge difference. This could be the most important minute of your day. We have been through difficult times and face big problems ahead. But every crisis contains both danger and opportunity. Peligro, pero también es una oportunidad. You can play your part. Right now. Right now. Пожалуйста, please close your eyes. Imagine the better future we could have. Imagine that future. What does it look like for you? For the people you love. How do we lift each other up and make it fair? How do we protect nature? And save our shared home. Picture that future you want. साथियों, आज जिस तेज़ गति से हम सभी ह्यूमन सिविलाइजेशन एक नए एंड डिफरेंस एरा में इंटर कर रहे हैं, ठीक उसी तेज़ गति से हम ह्यूमन सिविलाइजेशन नए एंड डिफरेंस नेचुरल क्लामिटीज़ एंड नेचुरल डिजास्टर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अगर हम सभी पार्टिकुलरली हमारे इन्वायरमेंट, इकोसिस्टम, बायोडाइवर्सिटी एंड बायोम की हालत को देखें, तभी हमें रियलाइज़ होगा। Climate change is here. Climate change is happening. We are well into the 6th mass extinction event. Europe is currently colder than the Arctic. More than 1,000 people being rescued just in the early morning hours of Sunday. Millions of people are likely to suffer worsening food and water shortages. Drought, which is now in its 10th year, is a phenomena that's here to stay. We've never seen a year's worth of rain in less than 7 days. Sea levels are rising about 3 millimeters a year because seawater expands as temperatures get warmer. Melting ice sheets and glaciers also add trillions of tons of fresh water into our oceans. People around the world are already losing their homes. And if things carry on, millions more of us will have to pack up too. Entire coastal cities could be underwater within 80 years, like Miami in the US or Osaka in Japan. Entire island nations in the Pacific could completely disappear. Natural disasters becoming more and more intense, more frequent, with more devastating consequences. The dramatic impacts of drought in different parts of the world, all this is creating a situation that is a real threat to humankind, and we are not doing enough. If 99% of doctors said to you, take this medicine or you will get really sick and probably die, you would take it. Who wouldn't take it? The problem is, at the moment, we don't have any medicine. Now there is a plan to slow all this down. Back in 2016, world leaders signed the so-called Paris Agreement, and the big pledge is to cap temperatures rising by 1.5 degrees or a maximum of 2 before the year 2100. So countries set their own targets on how much CO2 they emit. But here's the thing, 3 years after the agreement, global CO2 levels are still going up. CO2 emissions have been going up the last year by 2%, so that's actually above the average of the last 10 years. So it's started to increase again, and it doesn't look too good. In some ways, we're going backwards. The United States will cease all implementation of the non-binding Paris Accord and the draconian financial and economic burdens the agreement imposes on our country. जी हाँ, क्लाइमेट चेंज
आपने इसे कई बार डिफरेंस न्यूज़ एंड डिफरेंस सोशल प्लेटफॉर्म में सुने होंगे और इसके बारे में देखे होंगे एंड आप रियलाइज़ भी कर रहे होंगे कि सेम कंट्री में कहीं पर अचानक इतने हाई टेम्परेचर हो गए हैं कि ड्रॉट जैसे कंडीशन हो गए हैं, कहीं पर अचानक से बारिश नहीं हो रही और अचानक से इतने हो जाते हैं कि वहाँ पे फ्लड जैसे सिचुएशन क्रिएट हो जाते हैं, कहीं पर अचानक से अर्थक्वेक का आ जाना, कहीं पर अचानक से साइक्लोन का आ जाना। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं क्लाइमेट चेंज कैसे होता है, व्हाट इज़ द कॉन्सिक्वेंस ऑफ क्लाइमेट चेंज, मीन्स अर्थ के डिफरेंट प्लेसेस में कैसे मैनिफेस्ट करते हैं, and what is the reason and factor of climate change, and what is the impact of it on human, animals and all the living organisms, and how can we fix it. तो चलिए देखते हैं. A group of climate change organizations have emissions of greenhouse gases. Climate change is now happening. Indonesia says it's 10 million tons of. The Philippines tops a list of. Let's talk about climate change. People are calling it the crisis of our time, and it is. Climate change. Climate change. Climate changes. climate change. But it's easy to get lost in this story. The science is dense and politics get in the way. World leaders are meeting in Madrid to talk about the climate crisis and how to slow it down. And they're under pressure from millions of people around the world calling for concrete action. The empty promises are the same, and the inaction is the same. How dare you? You have stolen my dreams and my childhood with your empty words, and yet I'm one of the lucky ones. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How dare you? साथियों, हम सभी जिस दौर से अभी गुजर रहे हैं इसे एक एंथ्रोपोसी एरा कहा जाता है, मीन्स एक ऐसा एरा जिसमें ह्यूमन आर कैपेबल टू चेंज द स्ट्रक्चर्स एंड जियोपॉलिटिक्स ऑफ अर्थ. कुछ दिन पहले आप लोगों ने एक न्यूज़ सुने होंगे और अर्थ एक्सिस हैज़ बीन टिल्ड ड्यू टू ओवर मेल्टिंग ऑफ आर्कटिक एंड एंटार्क्टिक रीजन एंड ओवर इरिगेशन. हम ह्यूमन सेल्फिश बोले और डिक्रीज ऑफ क्रैनियल कैपेसिटी बोले कि हम अपने आप हमारे आसपास के इन्वायरमेंट को, हमारे हेल्थ को एंड ऑल द नेचुरल थिंग्स को डैमेज एंड हार्म करते जा रहे हैं, चाहे वो डिफॉरेस्टेशन के ज़रिए हो, इंडस्ट्रियलाइजेशन के ज़रिए हो और पॉल्यूशन के ज़रिए हो. और फिर हम कहते हैं हमारे यहाँ बारिश नहीं हो रही है, बाढ़ आ गया है एंड डिफरेंट नेचुरल कैलेमिटीज़ आ गए हैं. Developing countries that are at the front line of this battle. But you have to understand this is also a crisis for the world. The fact is that if the poor are suffering today, then the rich will also suffer tomorrow. If parts of the world become increasingly uninhabitable, future climate change could lead to internal displacement and migration. चलिए टॉपिक पर आते हैं दोस्तों. हम सबको क्लाइमेट चेंज को स्टडी करने से पहले थोड़ा बेसिक इन्फॉर्मेशन जानना होगा. साथियों, हम सभी बचपन से स्कूल से पढ़ते आ रहे हैं व्हाट इज़ एटमॉस्फेयर, व्हाट इज़ ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस गैसेस. तो चलिए इसको थोड़ा शॉर्टली रिकैप करते हैं, क्योंकि ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस इफेक्ट, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर, ये सारे चीज़ इंटरकनेक्टेड है एंड प्रोपोर्शनल है एक दूसरे से, तो इसे जानना ज़रूरी है. तो चलिए जानते हैं. कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर की बात करें देन देयर आर मेनली 3 टाइप्स ऑफ गैसेस आर प्रेजेंट. नंबर 1, परमानेंट गैसेस which includes nitrogen 78%, oxygen 21%, argon which is 0.93%, CO2 which is 0.03%, and so on. And number 2, temporary gases which includes ozone, xenon, helium, hydrogen and so on. Number 3, water vapor and some amount of aerosol and dust particles. And if you talk about the function of these gases, then इनमें से nitrogen, argon and xenon dilute the atmosphere to protect it from combustion and explosion. And जैसा कि हम सभी जानते हैं एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एंड ऑक्सीजन इज कंबसिबल गैस. CO2 which is present less than 1%, that is 0.003%, but play a major role. एंड हम सभी जानते हैं CO2 को ग्रीन हाउस गैसेस भी कहते हैं. एंड एज वी नो ग्रीन हाउस गैसेस क्या होते हैं. ग्रीन हाउस गैसेस मीन्स हैव द प्रॉपर्टी टू एब्जॉर्ब द हीट
and maintain the average temperature of our earth, that is 15 डिग्री सेल्सियस। साथियों, इन सारे चीज़ को ओरली जानना थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आप सभी इसे एक बार डायग्राम एंड पिक्चर के थ्रू देखें। तो चलिए देखते हैं। जैसा कि आप सभी देख पा रहे हो, इसे एक इंसोलेशन प्रोसेस कहा जाता है। बेसिकली इसमें होता यह है, जब हमारे अर्थ पे सनलाइट फॉल करते हैं तो उसमें हाई एनर्जी एंड शॉर्ट वेव इंक्लूड्स होते हैं, जिसे हम लोग कॉमनली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कहते हैं। इसमें इंक्लूड्स होते हैं गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज एंड विजिबल रेज एंड सो ऑन। इनमें से सिर्फ विजिबल रेज हमारे अर्थ पे इंटर कर पाते हैं, बाकी सारे रेज एंड वेव हमारे अर्थ के डिफरेंट लेयर्स से फिल्टर एंड ट्रैप्ड हो जाते हैं। जैसे कि आप सभी यहाँ पे देख पा रहे हो कि हमारा अर्थ से 60,000 अबव में एक मैग्नेटोस्फीयर नाम का लेयर होता है, जहाँ पे गामा रेज एंड एक्स रे फिल्टर एंड ट्रैप्ड हो जाते हैं। देन आफ्टर हमारे एटमॉस्फेयर का एक लेयर होता है स्ट्रेटोस्फीयर एंड ओजोन लेयर, जहाँ पे यूवी रे फिल्टर एंड ट्रैप्ड होता है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, जब हमारे अर्थ पे विजिबल रेज इंटर करते हैं एंड देन रिफ्लेक्ट होते हैं, जिसे हम लोग कॉमनली ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। रिफ्लेक्ट होते टाइम जो हमारे अर्थ के एटमॉस्फेयर में CO2 का अमाउंट प्रेजेंट होता है, वो हमारा विजिबल रेज से हीट को एब्जॉर्ब करता है, ताकि हमारे अर्थ का एवरेज टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस मेंटेन हो पाए। बट हमारे अर्थ में इंडस्ट्रियलाइजेशन के चलते जो एटमॉस्फेयर में CO2 का लेवल है वो डे बाय डे इंक्रीज होते जा रहा है, जिसके कारण हमें ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज एंड डिफरेंट नेचुरल फिनोमेना, नेचुरल कैलामिटीज का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आफ्टर इंडस्ट्रियलाइजेशन मीन्स आफ्टर 1750 के बाद से जिस स्पीड में हमारे अर्थ में ग्रीन हाउस गैसेस लाइक कार्बन, नाइट्रोजन, मीथेन एंड सो ऑन डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक उसी स्पीड से हमारे अर्थ एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप एंड हीट एब्जॉर्ब डे बाय डे इंक्रीज हो रहे हैं, जिसके कारण हमें क्लाइमेट चेंज के डिफरेंट फिनोमिनान दिखने को मिलता है। एंड ग्रीन हाउस गैसेस इंक्रीज होने की वजह से हमारे एटमॉस्फेयर में हीट ट्रैप एंड हीट एब्जॉर्ब हमारे एटमॉस्फेयर में इंक्रीज हो रहा है डे बाय डे, जिसके कारण हमें ग्लोबल वार्मिंग का सामना करना पड़ता है। एंड बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग क्लाइमेट चेंज ऑक्यूर्स। मैं आप सबको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग की वजह से क्लाइमेट चेंज होता है, ना कि क्लाइमेट चेंज की वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है। Ito ang dahilan ng pagkakaroon ng mga bagyong gaya ng Super Typhoon Yolanda. People are suffering. People are dying. Entire ecosystems are collapsing. We are in the beginning of a mass extinction, and all you can talk about is money and fairy tales of eternal economic growth. How? Because these numbers are too uncomfortable, and you are still not mature enough to tell it like it is. You are failing us. But the young people are starting to understand your betrayal. The eyes of all future generations are upon you. And if you choose to fail us, I say we will never forgive you. आइए अब जानते हैं क्लाइमेट चेंज किस तरह पूरे वर्ल्ड में इम्पैक्ट कर रहे हैं और कैसे इम्पैक्ट कर रहे हैं। अगर हम सभी बात करें द मोस्ट इफेक्टेड रीजन ऑन आवर अर्थ बाय क्लाइमेट चेंज, जिसके अंडर आएंगे आर्कटिक एंड अंटार्कटिक रीजन ऑफ द अर्थ। एंड एज वी नो, साइबेरिया द वर्ल्ड मोस्ट कोल्डेस्ट सिटी, जहां पर आफ्टर 2019 आइस फ्री समर एक्सपीरियंस किया गया है। सेकेंड, ग्रीनलैंड। दोस्तों, हम सभी जानते हैं ग्रीनलैंड एक ऐसा रीजन है जहां पर 12 मंथ आइस प्रेजेंट होता है, बट आफ्टर 2020 वहां पर रिकॉर्ड मेल्टिंग मेजर किया गया है। एंड अकॉर्डिंग टू द आर्टिकल्स एंड साइंटिस्ट, अगर ये इसी तरह मेल्ट होता रहे तो जब ये पूरी तरह मेल्ट हो जाएंगे तो हमारे पूरे वर्ल्ड का सी लेवल 25 सेंटीमीटर इंक्रीज हो जाएंगे। एंड द थर्ड वन, सकोहा रिपब्लिक रीजन ऑफ रशिया विच इज़ कैपिटल सिटी ऑफ वर्क्यांस्क। यहाँ पर इन 2023 मेज़र किया गया विंटर में टेम्परेचर यहाँ का -40 to -50 डिग्री सेल्सियस, बट समर में यहाँ का टेम्परेचर +38 डिग्री सेल्सियस हो गया। तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि आपका रूम का टेम्परेचर एक बार -40 डिग्री सेल्सियस किया गया एंड फिर कुछ देर बाद वहाँ का टेम्परेचर +38 डिग्री सेल्सियस हो गया। When I say climate
अब आइए देखते हैं इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन इक्वेटोरियल रीजन ऑफ द अर्थ, कंट्रीज लाइक इंडिया, चाइना, पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड सो ऑन। दोस्तों, इक्वेटोरियल रीजन में मेनली 3 टाइप्स का क्लाइमेट चेंज का फिनोमिनन पाया गया है। द फर्स्ट वन, एक्सट्रीमिटीज। इस फिनोमिना में हैवी रेनफॉल फॉर शॉर्ट टाइम बट ड्रास्टिक समर फॉर लॉन्ग टाइम। एंड हम सभी हमारे कंट्री में भी, इंडिया में देखे होंगे कि कोई रीजन पे ड्रास्टिक समर चल रहे हैं, बारिश ही नहीं हो रही है, और कहीं पर इतने बारिश हो रहे हैं कि फ्लड जैसे सिचुएशन क्रिएट हो गए हैं। द सेकेंड वन, ला लीना एंड ई लीना। इसमें बेसिकली कुछ ऐसा होता है कि सेम ही कंट्री में, सेम ही रीजन में कुछ एरिया में मॉनसून इंक्रीज हो जाएंगे और कुछ एरिया में मॉनसून डिक्रीज हो जाएंगे। अगर ला लीना हुआ तो मॉनसून इंक्रीज हो जाएंगे, अगर ई लीना हुआ तो मॉनसून डिक्रीज हो जाएंगे। Global warming said, what do we want? Protest against ScoMo and Adani coal. Yeah, because we don't like ScoMo and we want him out of. दोस्तों, अगर हम सभी बात करें मेजर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन ह्यूमन लाइफ्स, एनिमल्स एंड बायोडाइवर्सिटी, तो इनमें काफ़ी सारे पॉइंट्स आएंगे, जैसा कि ह्यूमन में न्यू डिजीज एंड डिसऑर्डर्स का होना, एनिमल्स में एक्सटेंशन होना, बायोडाइवर्सिटी में फ्रीक्वेंट फायर होना। तो इनमें काफ़ी सारे पॉइंट्स और काफ़ी सारे चीज़ इंक्लूड्स होंगे। तो मैं इन सारे को बोल के मैं वीडियो को लंबा बनाना चाहता नहीं हूँ, एंड आशा करते आप सभी जानते होंगे। We stand at a crossroads of accelerating change unlike anything ever seen in the history of life. It feels as if the future could tip either way. Our ancestors have survived asteroid impacts, ice ages, supervolcano eruptions, and deadly plagues, each time bouncing back to new heights. But our biggest threats no longer come from the natural world. They come from ourselves. Since the dawn of nuclear weapons, the threats of self-destruction have come to dwarf all others. By some estimates, the risk of causing our own extinction is over 300 times higher than extinction by natural causes. The Future of Life Institute identifies 4 main risks to our survival: nuclear war, climate change, biotechnology, and AI. To comprehend, the soot from a large-scale nuclear war could cool global temperatures by nearly 10 degrees and wipe out up to 63% of the population. We have made strides in reducing nuclear stockpiles, but there are nearly 10,000 warheads still in existence. Currently, we are on track to heat the Earth by around 2.7 degrees by 2100, which could displace over 1 billion people. But in the worst case, we could trigger CO2 tipping points and cause up to 12 degrees of warming in the coming centuries. Biotechnology has the potential to solve major crises like food scarcity and disease, but could give small groups of people the power to cause global disaster. In theory, the release of a designer pathogen could have an even higher death toll than a global nuclear war. But the hardest risk to gauge stems from AI. The risks we face are daunting. But beneath the rampant pessimism for our future is evidence that humanity can not only survive the coming centuries, but there are 3 broad paths our future could take. The first is collapse. A major catastrophe threatens the downfall of civilization and possibly even extinction of the human race. Second is plateau, where mankind averts collapse but hits an upper limit of progress. And third is transcendence, where humanity reaches its full potential, multiplies into the trillions, or transforms along the way into something entirely unimaginable.
Envisioning these futures will clarify the risks we face and a promise we have as we step into an unpredictable new era. दोस्तों आइए अब मेन टॉपिक पर आते हैं. हाउ कैन वी फिक्स द क्लाइमेट चेंज, मीन्स क्लाइमेट चेंज होने से कैसे रोके. दोस्तों हम सबको लगता है 1-2 टेम्परेचर का डिक्रीज़ और इंक्रीज होने से क्या फ़र्क पड़ता है, बट क्या आप जानते हैं 1-2 टेम्परेचर का डिक्रीज़ और इंक्रीज होने से हमारे क्लाइमेट का साइकिल पूरी तरह डिस्टर्ब हो जाते हैं, जिसके कारण हम सबको हीट वेव, कोल्ड वेव, अर्थक्वेक, साइक्लोन्स, फ्लड्स एंड डिफरेंट नेचुरल क्लाइमेटीज़ दिखने को मिलता है. तो फिर आखिर इनका सॉल्यूशन क्या है? क्या हम सभी अभी से क्लाइमेट चेंज को होने से रोकना चाहे तो रोक सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल रोक सकते हैं. एज लाइक हार्ट फेलियर पेशेंट को पेसमेकर के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है एंड किडनी फेलियर पेशेंट को आर्टिफिशियल डायलिसिस के थ्रू ट्रीटमेंट किया जाता है, और वो पेशेंट कुछ हद तक ही नहीं बल्कि बहुत हद तक स्वस्थ बन जाते हैं. ठीक उसी प्रकार से हम सभी हमारे छोटे छोटे योगदान लाइक पॉल्यूशन को प्रिवेंट करके, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करके, वाटर कंज्यूम करके, कार्बन इमिशन थिंग्स को कम यूज़ करके एंड डिफरेंट थिंग्स को हम सभी छोटे छोटे योगदान देके कर सकते हैं. बट ये सारे सही है कुछ हद तक, बट इट्स ऑल आर आउटडेटेड, बिकॉज अगर इसे हम सभी 20 ईयर्स पहले अप्लाई करते तो हो सकता है कुछ हद तक पॉसिबल था. बट अभी हम सबको मेजर चेंज की ज़रूरत है, और यह सिर्फ और सिर्फ हर कंट्री के गवर्नमेंट की पॉलिसी के थ्रू ही पॉसिबल है. आप सभी जानते होंगे जब हमारे अर्थ में ओजोन डिप्लेशन, ओजोन होल का प्रॉब्लम चल रहा था, उसके बाद 1985 में यूनाइटेड नेशन के थ्रू एक इमीडिएट एक्शन लिया गया और एक सबमिट हुआ, और उस सबमिट में हमारे वर्ल्ड के पूरे 195 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया, एग्री हुआ और साइन किया, और उसके चलते आज ओजोन डिप्लेशन बहुत ही हद तक डे बाय डे कम होते जा रहे हैं. ठीक उसी प्रकार जब तक वर्ल्ड के सारे कंट्री के गवर्नमेंट की पॉलिसी चेंज और स्टिक नहीं होंगे तब तक क्लाइमेट चेंज को रोक पाना मुश्किल है. वैसे तो हमारे इंडियन गवर्नमेंट के थ्रू बहुत सारे स्टेप्स एंड मेजर क्लाइमेट एंड एनवायरनमेंट पर लिए जा रहे हैं, जैसा कि कुछ दिन पहले G20 समिट हुआ जिसमें मेजर टॉपिक था एनवायरनमेंट क्लाइमेट, बट अभी भी बहुत सारे मेजर स्टेप्स इनकम्प्लीट्स है. सॉरी आई डोंट नो ये पॉलिटिक्स है या कुछ और है. नंबर 1 जो कि रिमूव फॉसिल फ्यूल सब्सिडी, फॉसिल फ्यूल्स से पूरी तरह सब्सिडी को हटा देना. नंबर 2 गवर्नमेंट शुड इनहेंस द इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड लो कार्बन इमिशिंग व्हीकल्स एंड इंस्ट्रूमेंट्स. एंड नंबर 3 कार्बन टैक्स, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड मेजर स्टेप टू प्रोटेक्ट आवर क्लाइमेट्स एंड एनवायरनमेंट्स. मीन्स इसमें जो इंस्ट्रूमेंट, जो व्हीकल्स एंड जो फैक्ट्रीज एंड इंडस्ट्रीज जितने कार्बन इमिट करेंगे उसे उतना टैक्स पे करना होगा. एंड आई होप अगर ये सारे स्टेप्स फीचर्स में फॉलो हो और हम सभी अपने छोटे छोटे कंट्रीब्यूशन हमारे इन्वायरमेंट को दे और हमारे फ्यूचर जनरेशन को मेंटेन करे और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करे, देन आशा करते हैं फ्यूचर्स में हमें क्लाइमेट चेंज एंड डिफरेंट नेचुरल क्लाइमेटीज़ का सामना कम करना पड़ेंगे. एंड आई ऑल्सो होप दिस वीडियो विल हेल्प टू इन्हेंस द कॉन्शियसनेस ऑफ मैनी पीपल टू सेव एंड प्रोटेक्ट आवर नेचर, environment एंड होम. थैंक यू.